Good morning student, welcome to my class again. This is the fourth video part of chapter number 5, that is arithmetic progression. In part 3 video we have started solving exercise 5.2 and we have completed 5 questions. Question number 1, 2, 3, 4, 5 and I have given question number 6, 7, 8, 9, 10 as homework. So in this part I am going to start with the solution of exercise 5.2 from question number 11. Okay students, let's start with the solution of exercise 5.2 from question number 11. Okay, question number 11 is which term of the AP, you have given AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. Okay, it is very clear in the question. You have to find the term of an AP which is 132 more than its 54th term. If you observe the given AP, then in the given AP the first term is 3. In the given AP the first term is 3 and the common difference is second term minus first term, that is 15 minus 3, that is equals to 12, and we have to find the term which is 132 more than its 54th term. We have a formula of an, that is given by an equals to a plus n minus 1d. Therefore if you find a 54 term, then it will be equal to 639. Why? Because the formula to find an is a plus n minus 1d, therefore a 54 will be equals to 3 plus 53 into 12 equals to 3 plus 3 63, that is 639. Now we want to find the term which is 132 more than its 54th term. That means in the question it is given that we have to find the term that is 132 more than this 54th term. That means we can write that term will be an, then this is equals to a 54 plus 132. Okay, now substitute the values here, as we have already find a 54 and the value of a 54 is how much here, 639. Therefore we have to substitute 639 at the place of a 54 plus 132. At the place of n we have to write a plus n minus 1d. Here the value of a is 3, n is not given, therefore we can write n minus 1 and the value of d is 12. On solving this one you will get 3 plus 12n minus 12 equals to 771. If you solve this one you will get the value of n as 65. Therefore the 65th term of the given AP will be 132 more than its 54th term. Hope this is clear to everyone. Now moving to question number 12. You have given two AP have the same common difference. You have given two different APs, those have same common difference and the difference between their 100 terms is 100. Okay, आपको दो AP दिया गया है, उन दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है, तो आपको फाइंड करना है उनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा. ये क्वेश्चन कभी कभी MCQ में पूछा जाता है. इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान देना, कभी भी कितने भी टर्म का डिफरेंस पूछा हो उसमें जो पहला डिफरेंस दिया हो आंसर वही होगा, मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस भी 1000 ही होगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट AP बी ए. मान लो पहले टर्म का पहला टर्म ए है और पहले AP का पहला टर्म ए है और दूसरे AP का पहला टर्म ए डैश है. ठीक है, दो अलग अलग AP दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले वाले AP का पहला टर्म ए है एंड दूसरे वाले AP का पहला टर्म ए डैश है, और ऐसा दिया गया है कि उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है. और मान लो इन दोनों का डिफरेंस D है, दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस D है और उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया है, मतलब A 100 और A डैश 100, A 100 और A डैश 100 का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 100. तो यदि हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं A 100 मतलब A प्लस 99D, A प्लस 100 माइनस 1 99D, और माइनस करेंगे इसमें से दूसरे वाले AP
का ए डैश 99D, तो क्या हो जाएगा ए डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये लिख सकते हैं हम ए प्लस 99D माइनस ए डैश माइनस 99D। तो ये 99D और 99D कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ए डैश इक्वल्स 100। तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव अ फर्स्ट कंडीशन दैट इज ए माइनस ए डैश इक्वल्स टू 100। अब हमको इनके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, मतलब 8000 माइनस ए डैश 1000, 8000 माइनस ए डैश 1000। यदि हम वो लिखे इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 999D माइनस ए डैश माइनस 99D। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ए माइनस ए डैश। लेकिन ए माइनस ए डैश क्या है, ए माइनस ए डैश कितना है 100 है, इसकी जगह पे हम 100 लिख सकते हैं। देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म विल बी 100। यदि इसमें हमको 10,000 टर्म का डिफरेंस पूछा होता तो भी 100 आता, 55 टर्म का डिफरेंस पूछा होता तो भी 100 आता। मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जो डिफरेंस दिया होता है वही आता है। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं? तो सबसे पहले हम वो सीरीज फाइंड कर लेंगे जो 3 डिजिट का नंबर हो और 7 से डिवाइड हो। तो पहला 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का नंबर होता है 105। आप देख लो 100 पहला 3 डिजिट नंबर है तो वो डिवाइड नहीं होता है 7 से। 101, 102, 103, 104 ये चारों को डिवाइड करके देख लो, ये चारों डिवाइड नहीं होते हैं। पहला जो नंबर आता है 105 वही जो है डिवाइड होता है 7 से। तो पहला 105 डिवाइड होगा तो दूसरा कितना होगा, उससे 7 ज़्यादा, 105 प्लस 7 दैट मीन्स 112। उसके आगे वाला क्या होगा, अगेन प्लस 7, 112 प्लस 7 दैट इज 119। तो मतलब सीरीज बन गया ये, 105 पहला टर्म हो गया, 112 दूसरा टर्म हो गया, 119 तीसरा टर्म हो गया। और अब हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करें, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर तो 999 होता है। तो क्या 999 7 से डिवाइड होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है। तो उसमें यदि हम चेक करना चाहेंगे तो 996 को चेक करेंगे, 995 के चेक करेंगे, फिर 994 को चेक करेंगे। तो उसमें से 994 जो है वो 7 से डिवाइड होगा। इसलिए 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता है लास्ट बिगेस्ट नंबर इज 994। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। It forms an AP means the first term is 105, second term is 112 and the last term will be 994। यह मतलब कि A की वैल्यू 105 हो गई, D की वैल्यू जो है वो 7 हो गई, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, N की वैल्यू फाइंड करना है कि मतलब ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो वी हैव अ फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करो, देन वी विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N। The last term is here 999, last term is here 994 and the first term is 105 n minus 1 into the common difference is 7। इसको सॉल्व करने पे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 128। तो 3 डिजिट से डिवाइड होने वाले 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट वाले नंबर टोटल जो है 128 नंबर्स हैं। Therefore, there are 128 terms in an AP. Got it? Then moving to the next one, how many multiples of 4 lies between 10 and 250? This question is quite similar to question number 13. 10 और 250 के बीच में, बिटवीन है ना, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। मतलब 10 से बड़ा, मतलब पहला नंबर 11 होगा, लेकिन 11 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर 12 देखेंगे, 12 इज डिविजिबल बाई 4। फिर आफ्टर 12 के बाद 12 प्लस 4 16 होगा, ओके। देन 20 होगा, देन 24 होगा, ऐसे ही जाएंगे। तो 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो लास्ट नंबर होता है 248। मतलब ये भी एक एपी फॉर्म हो गया जहाँ पे पहला टर्म 12 हो गया, दूसरा टर्म 16 और लास्ट टर्म देखा जाए उसका तो 248। अब ये 12 से लेके 248 तक कितने टर्म्स है, मतलब कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला विच वी हैव अप्लाइड इन द प्रीवियस वन, दैट इज an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D वेयर द वैल्यू ऑफ A इज 12 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। यदि हम अप्लाई करें उसमें तो वेरी सिंपली आपको यहाँ पे द लास्ट टर्म इज 248, द वैल्यू ऑफ A इज 12
एंड n-1 इंटू 4, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। मतलब टोटल जो है 60 टर्म होंगे, टोटल जो है 60 टर्म्स होंगे, ठीक है, जो 4 से डिवाइड होंगे। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस वैल्यू के लिए, जो एपी दिया हुआ है, 2 एपी दिया हुआ है, द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द टर्म्स ऑफ 2 एपीज 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3, 10, 17 डैश 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 इक्वल। मतलब इन दोनों एपी में n की किस वैल्यू के लिए ऐसा एक टर्म आएगा जो दोनों के लिए इक्वल होगा। तो मान लेंगे कि वो वैल्यू, वो nth टर्म है, वो nth टर्म है जो इक्वल होगा। तो पहला वाला एपी हम ऑब्जर्व करें, मतलब इस पहले वाले एपी का कोई टर्म है nth टर्म, और दूसरे वाले एपी का nth टर्म है, दोनों इक्वल है। तो पहले वाले टर्म में से यदि an हम फाइंड करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पे nth टर्म यदि हम फाइंड करेंगे पहले वाले एपी से, तो पहले वाले एपी में a की वैल्यू 63 है, n तो फाइंड ही करना है हमको, और पहले वाले एपी में डिफरेंस कितना है, इट इज़ वेरी क्लियर 2। तो पहले वाले टर्म से हमको an इतना मिल जाएगा, और दूसरे वाले टर्म में से an हमको कितना मिल जाएगा, an इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू 10-3 7। अब ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं ऐसा बोला गया है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। यदि दोनों को इक्वेट करोगे आप, फ्रॉम 1 and 2 1 इक्वल्स टू 2 इक्वेट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, ये इक्वेट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे इक्वेट कर दिया, वैल्यूज रख दिया और इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, n की वैल्यू आ जाएगी 13। मतलब दोनों का जो 13 टर्म है वो इक्वल होगा। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपको वो एपी फाइंड करना है जिसका तीसरा टर्म मतलब a3 का मतलब कितना होता है, a प्लस 2d, whose third term is 16, थर्ड टर्म 16 मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, और एंड द सेवेंथ टर्म, उसका जो सातवां टर्म है a7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, वो उसके पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। मतलब उसका जो सेवेंथ टर्म है, यदि आप ऐसे लिखना चाहो इसमें तो लिख सकते हो, यहाँ पे a3 दिया हुआ है आपको, a3 दिया हुआ है 16, और ऐसा बोला गया है कि जो सेवेंथ टर्म है a7 है वो उसके फिफ्थ टर्म से a5 से 12 ज्यादा है, राइट। तो मतलब a3 दिया हुआ है, तो a3 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d कितना हो गया 16, a प्लस 2d 16 दिया हुआ है, और आप इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन और फाइंड करोगे तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा a और d के फॉर्म में, और उन दोनों को सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और a और d की वैल्यू आ जाएगी तो AP आ जाएगा। क्लियर? देख लो सॉल्यूशन एक बार इसका। हियर द फर्स्ट टर्म इज a, लेट द कॉमन डिफरेंस इज d। तो थर्ड टर्म दिया है, मतलब थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 पहला आ गया, और सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, जो कि मैंने ऊपर लिखा था। तो a7 इक्वल्स टू a5 प्लस 12। Therefore, if you solve this one, then you will get the value of d as 6. After substituting the value of d in the above equation, you are able to find the value of a. तो d की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू 4 आ गई। तो पहला टर्म क्या होगा 4, दूसरा टर्म क्या होगा 6 प्लस 4 10, फिर क्या होगा 10 प्लस 6 16। Therefore, the AP will be 4, 10, 16, 22। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको एक बार क्वेश्चन समझना होता है। एक बार आप क्वेश्चन समझ लोगे तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में बच्चों देखिए आप, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट, मतलब कि पीछे से ये जो एपी दिया है उसके लास्ट से आपको 20वां टर्म फाइंड करना है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से आपको 20वां टर्म फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसमें जो मेथड दिया है, ये यदि आप इसको आगे से फाइंड करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा मेथड होगा। आपको 20 टर्म फाइंड करना है। तो यदि हम इस एपी को उल्टा कर दें,
इस AP को हम उल्टा कर दें। उल्टा मतलब ये जो लास्ट टर्म है उसको पहला मान ले, लास्ट टर्म को पहला मान लेंगे तो पहला टर्म 253 हो जाएगा, राइट। और यदि इसमें डिफरेंस हम देखें, स्टार्टिंग से डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है 5, लेकिन जब हम लास्ट से चालू करेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा -5, राइट। तो इसमें क्या है, उल्टा करके लिखें तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे 253 और लास्ट में यहाँ पे 1383। तो अब डिफरेंस हम देखें कोई भी टर्म, सपोज हम ये दो टर्म लेते हैं लास्ट के दो, तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा 3 - 8 करेंगे, 3 - 8 करेंगे तो -5, डिफरेंस कितना आ जाएगा -5। मतलब स्टार्ट जो देखो इसमें डिफरेंस यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यदि हम जैसे दिया है AP उसमें से जब डिफरेंस जो फाइंड करते हैं उसका जो भी AP डिफरेंस आता है उसको जस्ट माइनस में कर दो। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो 8 - 3 करोगे तो 5, तो उल्टा लिखने पे उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका हो गया 253, कॉमन डिफरेंस हो गया -5, और आपको फाइंड करना है 20 टर्म, मतलब आपको फाइंड करना है A20। A20 का मतलब क्या हुआ A + 19D, तो A इज हियर 253 और 20 - 1 19 हो गया, -5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 20 टर्म मिल जाएगा बैक साइड से 158। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18, the sum of 4 term and 8 term of an AP is 24 and the sum of 6 term and 10 term is 44। चौथे टर्म और 8वें टर्म का एडिशन 24 है और छठे टर्म और 10वें टर्म का एडिशन 44 है। तो वेरी सिंपल, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा। एक तो ये दिया है चौथे टर्म और 8वें टर्म का 24 और छठे टर्म और 10वें टर्म का 44। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा। पहला वाला सिंप्लीफाई करोगे आप, पहला वाला सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा और दूसरा वाला सिंप्लीफाई करोगे तो एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और फिर दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो A और D की वैल्यू आ जाएगी। देखो पहला वाला सिंप्लीफाई किया आपने तो आपको ये मिला 2A + 10D = 24। दूसरा वाला सिंप्लीफाई किया तो आपको ये मिला 2A + 14D = 44। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, कोई भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। कोई भी मेथड अप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो है A और D की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको A और D की वैल्यू मिल जाएगी, D की वैल्यू 5 आ जाएगी और A की वैल्यू जो है -13 आ जाएगा। D की वैल्यू 5 आ गई सॉल्व करने पे और A की वैल्यू -13 आ गया। तो AP क्या हो गया, पहला वैल्यू -13, फिर +D करेंगे तो -13 + 5 करेंगे तो -8, -8 + 5 करेंगे तो -3 एंड सो ऑन। देयरफॉर द AP विल बी -13, -8, -3, -2 एक्सेट्रा। इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद आपको आइडिया ही गया होगा कि सारे क्वेश्चन में लगभग सेम ही चीज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट यू हैव टू read the question carefully and whatever is given in the question you have to write that one and then you have to solve that one. Okay, now question number 19. I think that this is the second last question of this exercise. Okay, in this one Subba Rao started a work in 1995. 1995 में सुब्बा राव ने काम करना चालू किया। उनकी सैलरी मंथली सैलरी एनुअल सैलरी 5,000 रुपया था एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। तो वेरी क्लियर इट इज एन AP। पहला जो है टर्म होगा 5,000 होगा, दूसरा 5,200 होगा, तीसरा 5,400 होगा। अब बोला गया कि कितने सालों में उनकी सैलरी 7,000 होगी। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ पे पहला यदि हम कंपेयर करें AP से तो द वैल्यू ऑफ A इज हियर 5,000 एंड द वैल्यू ऑफ D इज हियर 200 and the last term is 7,000. So apply the formula an equals to a plus n minus 1d, then you are able to find the value of n and that n is number of years. Okay, ये देखो ये फॉर्मूला में ये वैल्यू रखो और सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी। ये देखो 7,000 an 5,000 n minus 1 200, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपका 11, तो मतलब 11 साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। Now the last question, रामकली saved ₹5 in the first week. रामकली हफ्ते में 5 रुपए बचाती है फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.575। मतलब पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाएगी तो दूसरे हफ्ते में कितना 6 रुपये 75 पैसा, फिर नेक्स्ट हफ्ते में 6 रुपये 75 पैसा प्लस 1 रुपये 75 पैसा, ऐसे करके वो बचाती जाएगी। तो ये भी AP फॉर्म हो गया।
कैसा एपीफेम हुआ, पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 6.75, 6.75 में आप 1.75 करोगे 8.5, ऐसे ही करते करते आप जाओगे तो बोला गया है कि उसकी मंथली सेविंग जो है वो 20.75 कब होगा, इसका मतलब लास्ट नंबर जो है डिसाइड कर लिया गया है कि 20.75 है. ओके, देयरफॉर द लास्ट नंबर इज 20.75. नाउ वी वांट टू नो इन विच वीक, मतलब कौन से हफ्ते में 20.75 होगा. डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दिस वन, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और सॉल्व करो. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी. मतलब 10वें हफ्ते में, 10th वीक में उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगा. Hope all the solutions are very clear to everyone. In the next, this is all about from this class. In the next class, we are going to start with exercise 5.3. In that one, we are going to apply the new formula. In that one, we are going to find the sum of term. Right here, we are using an, the formula of an. In that one, we are using the summation of n term. The form, write the let's discuss that formula. Sum of n term. Suppose you have given 10 numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and suppose you have to find the addition of that 10 terms. Then we have a formula Sn equals to, we have a formula Sn equals to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 d. Note this formula. We are going to use this formula in the next exercise. Thank you very much. Meet in the next class.